Hello, good day. I wish all the viewers a very, very happy and lovely day today. I bring greetings from my hospital, that is Star Laparoscopic Center, which is situated in Meerut, Uttar Pradesh, that is in Delhi NCR. And I'm Dr. Monica Singh Tomar. Today is a lovely day. It's a special day. Why is it special? Because today is 28th of May. And 28th May is International Day of Action for Women's Health. It's internationally, this day is being celebrated as a day when you take action for women's health. And every year on 28th May, they come up with a theme. And the theme for this year is that health of a woman is an not an option, it is compulsory. Or you can say it is essential. Health is essential and not an option. And this theme was formulated after more than 100 organizations. They sat together and did a lot of brainstorming all over the world. It was not in here in our country, but it was international. And this theme was decided by all these people who sat together and brainstormed. And they saw that in the present scenario where there is poly crisis, there's crisis everywhere. What crisis? There is crisis if you see the climate. There are wars going on. Racism is a cause of economical crisis. In this time, the health of a woman has to be made a priority and not just an option. So this organization has come up with this theme. And what is our duty? Our duty as a citizen, as a doctor, my duty as a doctor, and your duty as a citizen of the country. What you should do is, if you see the climate, you all are aware of the soaring temperature in this northern part of our country, India. The temperature are going up, the climate change is there throughout the world. There's global warming. We can plant more trees so that the environment is cooler. And this will help us in a long way, because what is anticipated is in the incoming 20, 30 years, the temperatures are going to soar so high that because of the heat stress or heat exhaustion, there are going to be a lot of health problems. And they are expecting lots of mortality and deaths because of this. Heat stroke, heat exhaustion, malaria, diarrhea, dehydration. These problems will be a major cost. Economical crisis will set in. So अभी हमें हरे पेड़ लगाने हैं, पानी को बचाना है, environment को protect करना है. And me as a doctor, as a gynecologist, would like to do my bit. हमारा थोड़ा थोड़ा प्रयास सबका एक एक बूंद से कहते हैं गढ़ा बढ़ता है. तो मैं आपको बताना चाहूंगी of all the people in the country, of all the viewers or whoever can hear me, that a vaccine has arrived for cancer. Cancer एक है, एक कैंसर ऐसा है, केवल एक है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन आ गई है, and that is HPV vaccine. HPV एक वायरस होते हैं. It has 200 different type of viruses which are responsible for causing cancers. Females में, महिलाओं में causes cervical cancer, vaginal cancer. इसके अलावा besides this, oropharyngeal यानी मुंह का, anal का and penile cancers are also there, जो ये boys में भी होते हैं. ये HPV viruses मस्से एंड वॉट्स के लिए भी बदनाम है, ये करते हैं ये समस्या. तो हम अगर वैक्सीनेट करते हैं अपनी बच्चियों को सही टाइम पे, बहुत सारी कंट्रीज में इवन द बॉयज आर गेटिंग वैक्सीनेटेड. There are 90 countries world over
who have adopted this vaccine for the boys. But right now in our country, we have these vaccines, but the amount is just enough to vaccinate our girls. And why are girls? Because girls have more carcinoma cervix. The number of cases are more than carcinoma of penile, anus, or oropharyngeal, which are found more in boys or males. So vaccination at the right age, which is the right age? यूं तो वैक्सीन 9 years एक बच्ची को and 45 years की महिला को लग सकती है. हमारी कंट्री में इट इज एडवाइजेबल दैट 14th बर्थडे से पहले, whenever बच्ची का 15वां जन्मदिन हो उससे पहले, if we are able to vaccinate the girl with this vaccine, जो कि मसल में लगती है, मांस में लगता है इंजेक्शन, इस इंजेक्शन को 15th बर्थडे से पहले अगर हमने एक डोज लगवा दी तो वो पर्याप्त है, दैट इज इनफ. बट इफ यू मिस दिस बस, अगर 15वें जन्मदिन से पहले आप इसको नहीं लगवा पाए, आप लेट हो गए, तो 25 साल तक भी लग सकती है, 26 साल तक लगवा सकते हैं, बट नंबर ऑफ डोजेस बढ़ जाती है. जैसे जैसे एज बढ़ती है आपको ज्यादा डोज देनी पड़ती है, बिकॉज इफेक्टिव ये तभी है जब आपकी एज कम है. यंग एज में ही ये मैक्सिमम इसकी एफिकेसी होती है. तो यंग एज में इसलिए एक डोज लगती है, एज बढ़ गई तो आपको 2 डोज, और इवन बॉयज में या अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो 3 डोज भी देनी पड़ती है. बट ये सेकेंड डोज 6 months पे लगती है, और साल भर का इसका ये पूरा अलग अलग, मतलब एक साथ नहीं लगनी होती है. 0 आज लगी, 1 महीने बाद सेकेंड डोज, और 6 महीने बाद थर्ड डोज. या अगर 2 डोज के शेड्यूल है तो आज 1 डोज और 6 महीने के अंदर अंदर सेकेंड डोज लगनी होती है. तो जैसे मैंने आपको बताया, ये HPV कैंसर सर्विक्स ऑस्ट्रेलिया में ये इराडिकेट हो गया है, ये एलिमिनेट हो गया है. जैसे शायद आप जानते हो, कुछ लोगों को पता होगा कि बचपन में हम लोगों को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगा करती थी, बहुत होता था, 6 का टीका. स्मॉल पॉक्स एज अ रिजल्ट इराडिकेट हो गई है, एलिमिनेट हो गई है टीके के द्वारा. पोलियो ड्रॉप्स के बारे में भी आपने सुना है, उसी तरह से एक HPV की वैक्सीन है. और एक अच्छी खबर ये है कि हमारी सरकार अभी लेटली मार्च 28 ऑफ फरवरी में इन्होंने अनाउंस किया था कि कमिंग टाइम में 3 महीने के लिए 14 साल की ओनली, माइंड यू ओनली 14 years, ये उनका टारगेट एक वो था एम, कि केवल 14 साल की लड़कियों को हम ये फ्री में लगाएंगे. यानी सरकार इसको फ्री में 14 साल की बच्चियों को लगा रही है. और ये वैक्सीन, अगर आप कहीं आसपास सुन रहे हैं, आपके कांटेक्ट में कोई बच्ची है जो 14 साल की है, तो आप उन्हें तुरंत बताएं. अभी भी ये सरकारी तंत्र द्वारा फ्री में लगाई जा रही है, जिस तरह से कोविड की वैक्सीन लगी थी कुछ 2020 में, कुछ समय पीछे, आपको अगर याद हो, हम सबने कोरोना वैक्सीन लगवाई थी जो सरकार ने हम सबको फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई थी. उसी तरह से ये एक स्पेशल कैंपेन चला है. माना गया है कि 3 पिलर्स होते हैं, जो अगर मजबूत पिलर, ये स्तंभ हैं जिनको आप अगर से अच्छी से आप कर ले, तो आपकी आने वाले 50 साल 100 साल में दुनिया से स्मॉल पॉक्स की तरह से HPV या सर्वाइकल कैंसर ये एलिमिनेट हो जाएगी. तो ये बहुत ही गुड न्यूज है. तो मेरा आज के दिन, इस स्पेशल 28 मई के दिन, मैं आपको एक ये चीज कहकर अपना कार्य पूरा करती हूँ. एज ए डॉक्टर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर. दूसरा, 40+ एज की लेडीज में, देखिए वैसे तो लेडीज हेल्थ फॉर वुमेन हमारी यंग बच्चियों से स्टार्ट हो जाता है, प्यूबर्टल एज ग्रुप से. एडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं, जैसे वो एंटर करती हैं मेनार्की में, उस समय कुछ उनकी समस्याएं होती हैं. 14 साल की बच्ची के लिए मैंने आपको वैक्सीन के बारे में बता ही दिया है. फिर हमारी आती है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मिडिल एज, जो हमारी 13, 14, 15, 20 से लेके 40 की एज आप मान सकते हैं, यंग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. इस एज में हमें जो बच्चियां, जो लोग पहले वैक्सीनेट नहीं हुए, उनको कैच अप वैक्सीनेशन दे सकते हैं. इस टाइम पे हम उनको मोटिवेट करेंगे. ये टाइम है जब आप अपनी बोन हेल्थ के बारे में थोड़ा सा जागरूक हो जाएं.
अपनी हड्डियां 35 तक ही कैल्शियम हड्डियों में जमा होता है। आफ्टर 35 इयर्स गर्ल्स की हड्डियों में कैल्शियम जमा हो, उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है बाय टेकिंग लॉट ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी एंड डूइंग एक्सरसाइजेस। आफ्टर 35 डिक्रीज ही होता है। और आफ्टर मेनोपॉज, मेनोपॉज अब आप पूछेंगे मेनोपॉज क्या होता है? जब आपका 1 साल तक 12 महीने तक मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाए, सीज हो जाए, तब उसको मुड़ के कहते हैं इनको मेनोपॉज हो गया। मेनोपॉज से जस्ट पहले का टाइम पेरीमेनोपॉज है, जिस टाइम में हमको बहुत सतर्क होना है या हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना है कि वो अपनी बोन की हेल्थ का ध्यान रखें। हड्डियों के साथ साथ याद रहे अपना एनीमिया का, खून की कमी ना हो, है तो चेक करें, आती है तो कैल्शियम के साथ आप आयरन एंड B12 का सेवन करें। कैल्शियम विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए हो जाएगा, आयरन, फोलिक एसिड एंड B12 आपके खून के लिए, हेमाटोनिक्स हैं, ये खून बढ़ाते हैं, तो बहुत जरूरी है इस टाइम पे। वेट भी आपको वॉच करना है। यदि आप ऑप्टिमम वेट पर हैं, आपका वजन सही है, तब आप अच्छी हेल्थ में आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आउटकम अच्छा रहेगा। इस टाइम पे आपको थायराइड अपनी एंड डायबिटीज के लिए भी समय समय पे ब्लड टेस्ट द्वारा स्क्रीनिंग करते रहना है। महिलाओं को आई वुड सजेस्ट कि साल में एक बार कोई भी एक दिन चूज कर लें। जैसे कि आप माने आज 28 मई है, 28 मई इंटरनेशनल डे, इस दिन आप कर सकते हैं, या अपने जन्मदिन वाले दिन मेक इट अ पॉइंट कि आपने हो सके तो ब्लड टेस्ट होल बॉडी कराएं, जिसमें अपने कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 इन लेवल्स को चेक करें कि खून कम तो नहीं है। अनीमिया के लिए अपने ब्लड को चेक कराएं। थायराइड और शुगर, एक ये दो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल एंडेमिक या एपिडेमिक की तरह फैल रही हैं एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में। तो समय समय पे आप जब भी, इवन प्रेग्नेंट लेडीज में आजकल हम यूनिवर्सल यानी सभी प्रेग्नेंट लेडीज का ये टेस्ट स्क्रीनिंग कराते हैं फॉर शुगर एंड इवन फॉर थायराइड। थायराइड नॉर्मल है, काम कम कर रहा है, या उसका काम ज्यादा चल रहा है, हाइपरथायराइड, ये चीज चेक हो जाती है एक ब्लड टेस्ट से। और आपने ये बेसलाइन चेक्स करा लिए। लिपिड एक और चीज है, अगर आप यंग हैं, मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल हैं, तो ज्यादातर आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। ये ईस्ट्रोजन्स या हार्मोन जब तक आपके चल रहे हैं, साइकिल चल रही है, आपका हार्ट प्रोटेक्टेड होता है अगेंस्ट हार्ट अटैक्स। बट आफ्टर यू हैव क्रॉस दिस टाइम, यानी आपके मेंसेस सीज हो गए, आप मेनोपॉज की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड आफ्टर मेनोपॉज यानी अगर साल भर तक पीरियड्स नहीं रहे, लेबल कर देंगे मेनोपॉज हो गया। अब मेनोपॉज हो गया तो उसके बाद आपका इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज भी उतना ही हो जाता है जितना कि मेल्स का। मेन में हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, बट लेडीज में आफ्टर मेनोपॉज वो मेन के बराबर ही है। आदमी एंड मेल फीमेल सेम उनका रिस्क हो जाता है। तो अगर मेनोपॉज आपने अटेन कर लिया है, तो आप आ जाते हैं पोस्ट मेनोपॉजल टाइम में। मेनोपॉज से पहले पेरीमेनोपॉजल वाला टाइम है, जब आपको जागरूक रहना है, अलर्ट रहना है, इंटेलिजेंटली आपको अपने बॉडी की हेल्थ पे वर्क करना है। आफ्टर मेनोपॉज अगेन आपको इन सब चीज पर बहुत अलर्ट होके काम करना है। वेट अपना वॉच करें, कैल्शियम एंड बोन हेल्थ के बारे में आपको अलर्ट रहे। इमिडिएटली आफ्टर मेनोपॉज आपके बॉडी के ईस्ट्रोजन हार्मोन्स घटने लगते हैं। तो कुछ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ लंबी, कुछ जो आपको कुछ समय के लिए होती हैं। हॉट फ्लशेस हैं, वासोमोटो फ्लशिंग हो रही है, गर्मी एकदम अचानक से लगी, रात को अचानक आपको पसीने आने लगे, नींद नहीं आती, ब्रेन में फॉगिंग होने लगती है, भूलने लगते हैं, थकने लगते हैं, ये सारे आपके हार्मोन्स के घटते हुए ईस्ट्रोजन लेवल की वजह से होता है। यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं, शुरू में खत्म होने से पहले कभी कभी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में इरेगुलर साइकिल्स, हेवी साइकिल्स भी होती हैं, बट अब बंद हो गई तो आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स, ड्राइनेस, वजाइना, इस तरह के सिम्टम्स होने शुरू होते हैं। और ये टाइम है जब आपको अपने हार्ट हेल्थ, अपने वेट
और अपनी बोन हेल्थ के बारे में ध्यान देना है। अपने आई हेल्थ, आई चेकअप कराएं, और हार्ट के लिए आप लिपिड प्रोफाइल कराएं और अपना लिपिड्स को नॉर्मल रखें। डायबिटीज भी आजकल एपिडेमिक की तरह सब जगह लोगों को जिसको देखो डायबिटीज निकल रही है, तो शुगर कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ही जिम्मेदारी है। तो इसका चेक कराए है तो अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो दिस इज फॉर 40 प्लस एज। आई थिंक आज के इस इंटरनेशनल डे जिसमें हम एक्शन ले रहे हैं फॉर वुमेन्स हेल्थ, इस पे हमारे इस थोड़े से प्रयास का आपको बहुत बेनिफिट मिलना चाहिए, आई होप मिलता है। और अगर आप जरा भी जागरूक हैं यूनिवर्सली, पूरी जो वर्ल्ड में जो क्राइसिस आई हुई है इस प्रेजेंट टाइम में, हम लोग फिर भी बेटर प्लेस्ड हैं। बट कुछ आप वॉर स्टक जो जोन्स हैं, अफ्रीका, अमेरिका, इन सब जगह भी अलग अलग रिसर्च से पाया गया कि हर एरिया में कुछ ना कुछ क्राइसिस, कोई ना कोई कष्ट धरती पर है, जिसकी वजह से वुमेन की हेल्थ अफेक्ट हो रही है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि लेडी हेल्दी है, एक वुमेन जो अपने परिवार का न्यूक्लियस है, जिसके इर्द गिर्द सब तरह की पूरी लाइफ परिवार की रोटेट करती है, रिवॉल्व अराउंड करती है, अगर उसका हेल्थ अफेक्टेड है तो एक परिवार ही नहीं, एक समाज और एक पूरा नेशन एज अ होल अफेक्ट होता है। तो आज के दिन हमको इसके लिए थोड़ा सा सब लोगों को प्रण भी लेना चाहिए कि वुमेन के लिए सब लोग बहुत रिस्पेक्टफुल है। हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ समय से काफी टाइम हो रहा से बहुत अच्छे से प्रयास चल रहा है, उसके रिजल्ट और नतीजे भी दिख रहे हैं। पहले जो है रेशियो जो मेल एंड फीमेल का था वो बहुत ही डिस्पैरिटी थी, आज फीमेल हर एरिया में आगे भी है, रेशियो भी बेटर इम्प्रूव हुआ है, जैसा हम आज से 30 साल पहले अपने प्रैक्टिस में जब आए थे तब देखते थे। हमारे सामने सामने काफी बदलाव आया है, एंड थैंक्स टू हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी में मोदी जी, इनके विजन की वजह से वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम हो रहा है। और आज के दिन इंटरनेशनली सब लोग इस पे प्रयास कर रहे हैं, और आई होप ये प्रयास सबके लिए सफल हो। अगर हम एज अ डॉक्टर आप तक ये मैसेज पहुंचा पाए कि आप अपने यंग बच्चियों के लिए मिडिल आप 20 से 40 वाला जिसको रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहते हैं, इसमें आप एनीमिया प्रिवेंशन एंड इवन डिलीवरी से रिलेटेड, मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स, मोर्टालिटी, मोर्बिडिटी होती हैं, उसके रिलेटेड जरा से भी आपको हम जागरूक कर सके तो आई फील माई सेल्फ प्रिविलेज्ड। एंड हाँ, आई थिंक अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। अदरवाइज इसमें देखिए देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, हम वी कैन गो ऑन एंड ऑन विद ऑल द, बट मेन चीज इज टू मोटिवेट यू, टू मेक यू रियलाइज कि एक क्राइसिस है आज दुनिया में, क्राइसिस इकोनॉमिक, क्लाइमेटिक, इवन रेसिस्ट, वॉर आप देख ही रहे हैं सब जगह। तो इस तरह के माहौल में सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो एक दुनिया बेटर होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। मुझे क्वेश्चन कोई दिख नहीं रहा है, इज दे एम आई ऑडिबल? मुझे लग रहा है मैं सुन भी पा रहे हैं सब लोग या यंग बच्चियों को कोई सी भी 20 to 40 एज, मेनोपॉज, पॉजल एज ग्रुप, पोस्ट मेनोपॉज। पोस्ट मेनोपॉज में भी अगर आप देखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन इंटरप्ट इन द बिट, मैं आपका आंसर कर दूंगी। एक बढ़ती उम्र में भी लेडीज में, विमेन में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको बोलते हैं बढ़ती उम्र इज जीरियाट्रिक एज ग्रुप।
नहीं, मुझको क्वेश्चन शो नहीं हो रहे. Anybody can just help me with the questions.